So, welcome back to our IUPAC nomenclature of polyfunctional compound. In the previous lecture, we had seen how to name a polyfunctional compound by using four components. And those four components are, the first component which we had seen is word root. It gives an idea about the chain of number of carbon atom in parent chain. It gives an idea of number of carbon atoms in parent chain. And we had seen if there is one carbon, we call meth, if two, call eth, if three, we call prop, if four, we call it as but, and like that, word root. Second component of IUPAC nomenclature was primary suffix. Primary suffix, it gives an information about the nature of parent chain. Nature of parent chain. Whether the parent chain is having carbon-carbon single bond, carbon-carbon double bond, or carbon-carbon triple bond. If there is carbon-carbon single bond, the suffix will be "ane". If double bond, suffix will be "ene". If triple bond, suffix is "ine". Then the third component, very important, that is secondary suffix. Secondary suffix, it gives an idea about, it gives an information about principal functional group. Principal functional group. Principal functional group. Out of many functional group, one of the functional group is considered as a principal functional group according to priority order or priority list. Principal functional group. इसमें एक और हमने किया था, if principal functional group begins with vowel, तो हमें क्या करना होगा? Drop E from primary suffix. Drop E from primary suffix. ये जो लास्ट में E लगा है, that will be dropped if this principal functional group begins with vowel. And the fourth priority पे क्या आएगा? Prefix. This prefix is used for remaining functional group. आपने principal functional group तो डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप बचेगा they will be named as prefix. So remaining functional group as prefix, और दूसरा क्या आएगा? अल्काइल ग्रुप as prefix. जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल रहेगा, they will be considered as prefix. जैसे ये वाले एग्जाम्पल में यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है कि हमको एक जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. जैसे इस एग्जाम्पल में ये अल्काइल ग्रुप है ना, दिस इज एन अल्काइल ग्रुप, तो ये अल्काइल ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो ये हो गए फोर कंपोनेंट. फिर से रिवाइज हो गया ये, है ना. अब चलो अप्लाई करते हैं इसको. अप्लाई करते हैं. 5 examples are on the board. Let us find out their IUPAC nomenclature. Example number 1 is here. So first of all, find the word root with principal functional group. तो इसमें functional group कौन सा है? CHO, Cl and OH. Priority order से this is going to be the principal functional group, and other functional group are prefix. They are prefix. Okay. Now number the select the longest continuous carbon chain.
so that this principal functional group gets the lowest possible number. तो ये principal functional group aldehyde का कार्बन हमेशा फर्स्ट रहेगा. दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अब आपके पास में यहां से देखिए फिफ्थ कार्बन के बाद में यहाँ ये सिक्स्थ कार्बन मिल रहा है, और अगर ऊपर के तरफ ये जो ब्रांच दिख रही है C2H5, हियर 2 कार्बन एटम्स आर सिंगल प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा 5, 6 and 7. तो 7 मिलेंगे इफ वी टेक दिस काइंड ऑफ पेरेंट चेन. एक जस्ट लाइन ड्रॉ करता हूं, ये देखिए ये 7 कार्बन की पेरेंट चेन मिलेगी. अगर आपने ये चेन को यहां एक्सटेंड कर दिया, इंस्टेड ऑफ गोइंग अपवर्ड, इफ यू कंटिन्यू विद द हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ये कितने होंगे? सिर्फ 6 कार्बन होंगे. तो 6 नहीं होना, हमें 7 कार्बन होना. तो ये 7 कार्बन की पेरेंट चेन. तो ये पेरेंट चेन को मैं बॉक्स में ले लेता हूं. ये 7 पेरेंट चेन बॉक्स में आ गए. 7 कार्बन एटम की जो पेरेंट चेन है वो बॉक्स में आ गई इधर. करेक्ट है? ओके, चलिए जो रिक्वायर्ड करेक्शन था कर लिया हमने. फिर से एक बार लिख दिया अच्छे से इसको. तो CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2. करेक्ट है? और ये आ गया सिंगल बॉन्ड CH2. तो थोड़ा सा ओवर राइटिंग, बट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा होगी. और ये भी CH3 जो है ये क्या हो गए? सब ब्रांच में चले गए. तो बेटा कितने टोटल कार्बन मिले? 7 कार्बन. 7 कार्बन और उसमें अल्डिहाइड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. तो मैं 7 कार्बन है तो इसको लिखता हूं हेप्ट. करेक्ट? अब सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स. नेचर ऑफ पेरेंट चेन तो अल्केन वाला है ANE लगा देंगे. सॉरी, तो वर्ड रूट मिला हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स मिला एन. अब सेकेंडरी सफिक्स अल्डिहाइड है. अल्डिहाइड के लिए क्या लिखाएंगे? AL. लेकिन ये वॉवेल से शुरू हो रहा तो ये E ड्रॉप करेंगे हम. तो क्या बन जाएगा ये पूरा नोमेनक्लेचर? हेप्टेनल. हेप्टेन 1 अल ऑफ 1 पोजीशन को मेंशन नहीं करते हैं. तो हेप्टेनल कैसे आया ये समझा आपको. 7 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एन और अल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो हेप्टेनल. अब ये सब्स्टिट्यूएंट लिख दो आप यहां पर एज ए प्रीफिक्स. तो 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सी, 4th कार्बन पे क्लोरो और 5th कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है? मिथाइल ग्रुप. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो. तो क्लोरो पहले आएगा. क्लोरो की पोजीशन क्या है वो लिखेंगे आप. क्लोरो इज 4 क्लोरो. देन हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी. अब अल्कोहलिक ग्रुप है लेकिन प्रीफिक्स बना तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे इसको. करेक्ट है? 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल. अब मिथाइल को मैं ME करके शॉर्ट में लिखता हूं. तो ये मिथाइल आपके समझ में आएगा. 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेप्टेनल. आ गया फंक्शनल ग्रुप. करेक्ट हो गया नोमेनक्लेचर. तो देखिए 3 फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एंड क्लोरो. इसमें प्रिंसिपल इज अल्डिहाइड. Moving to the next example, again it is having 3 functional group, cyanide, nitro and bromo. So cyanide is principal functional group. Select the longest continuous carbon.
chain containing functional principal functional group. तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कार्बन. अब साइनाइड का भी जो कार्बन है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड नाउ फिफ्थ कार्बन. 5 कार्बन. पेंट. सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दो, पेंटेन हो गया. साइनाइड का सफिक्स क्या लिखते हैं? नाइट्राइल. तो नाइट्राइल जो है ये वोवेल से शुरू हुआ क्या? एन नहीं है, एन इज नॉट अ वोवेल. तो पेंटेन नाइट्राइल है ना. तो पेंटेन 1 नाइट्राइल इज द नोमेनक्लेचर. अब इसमें ब्रांच कहाँ कहाँ पर है? कार्बन नंबर 3 पे नाइट्रो है, कार्बन नंबर 4 पे ब्रोमो है. तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 ब्रोमो, 3 नाइट्रो, पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन 1 नाइट्राइल. नेक्स्ट वाला. अब यहां पर डबल बॉन्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, करेक्ट है. OH भी फंक्शनल ग्रुप है. तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? यहाँ पहले प्रायोरिटी देंगे OH को, करेक्ट है. तो ये OH यहाँ पर प्रायोरिटी आ गया. तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप. इसको बेटा CH3 कर दो. अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं करते, अभी बाद में आते हैं हम इस पे, करेक्ट है. ओके. सो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH तो select the longest continuous carbon chain containing hydroxy functional group. Rest of the other are branches. Okay? तो ये ब्रांच होगी. अब आपको नंबरिंग करना होगा. तो नंबरिंग कैसे होगी इसकी? Does this will also become a branch? No. No. This will also, हम लिखेंगे यहाँ ये CH3 सर्टनली, यहाँ ये CH3 को मेंशन करेंगे. अब ये पेरेंट चेन में आ जाएगा क्योंकि ये सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है ना. क्योंकि यहाँ से तो नंबरिंग शुरू नहीं हो सकेगा, तो ये पेरेंट चेन में आ गया. ये अल्कोहल सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंडरी अल्कोहलिक. तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन. थोड़ा ध्यान देना है अभी हमको, है ना. चलिए जी, 5 कार्बन. 1 2 3 4 5. 5 इज स्पेंट. अब प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 4 एंड 5. तो इसमें लोएस्ट नंबर क्या है? 4. तो हम 4 और 5 के बीच का बॉन्ड है, तो नंबर कौन सा यूज करेंगे? 4. तो 4 वाला अल्कीन हो गया. पेंट 4ईन, पेंट 4ईन. देखिए पेंट 4ईन, ये आ गया, सफिक्स आ गया प्राइमरी. अब सेकेंडरी सफिक्स यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज OH. वो कौन से कार्बन पे है? 2. तो 2 ऑल, पेंट 4ईन 2 ऑल, पेंट 4ईन 2 ऑल. अब ये 2 ऑल में ये E को हमें यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि वॉवेल आ गया. तो क्या बनेगा? पेंट 4ईन 2 ऑल, ये कंपाउंड हो गया. अब प्रीफिक्स क्या बचा इसके पास? मिथाइल ग्रुप. कौन से कार्बन पे है? थर्ड कार्बन पे. तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, पेंट 4ईन 2 ऑल इज द कंप्लीट IUPAC nomenclature. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब ये तो सीधा सीधा है, तो पेरेंट चेन तो मिल गई आपको. ये इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है. लेकिन नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, देन 2, देन 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन. डन. चलिए जी, अब ये बहुत इजी नोमेनक्लेचर हो गया.
6 is hex. 6 is hex. करेक्ट है. अब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? 5 and 6. ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है? 3 and 4. तो जो पोजीशन है बाकी वो मेंशन करेंगे. तो लोएस्ट 5 और 6 में लोएस्ट क्या होगा? 5. 4 and 3 में लोएस्ट होगा 3. तो हेक्स 5 in 3-ine oic acid. 1 oic acid या सिंपल oic acid. हेक्स 5 in 3-ine oic acid. अब क्या होगा? ये वॉवेल आ गया तो ई ड्रॉप कर दो, तो ये क्या बनेगा? ये ई ड्रॉप करो आप, तो हेक्स 5 in 3-ine oic acid. तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया. अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो. नेक्स्ट एग्जाम्पल में और भी इजी है. अब यहाँ पर 2 ट्रिपल बॉन्ड है, बस 2 ट्रिपल बॉन्ड है. तो नोमेनक्लेचर ये टर्मिनल पे भी 1 2 3 कर सकते हैं, यहाँ से भी 1 2 3 नंबरिंग कर सकते हैं. 1 2 3 4 and 5. करेक्ट. तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो लोएस्ट फर्स्ट लिया. 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 जो लोएस्ट नंबर लिया. अब टोटल कार्बन कितने हैं? 5. 5 इज स्पेंट. 5 इज स्पेंट. पेंट ट्रिपल बॉन्ड कितना है? 2 टाइम्स है पेंट. ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 4 डाई 2 टाइम्स है. करेक्ट. पेंट 1 4 diene. Pent 1 4 diene is the nomenclature of this polyfunctional compound. Okay, तो ये 4 कंपोनेंट याद रखेंगे पॉलीफंक्शनल के लिए आप, कि पहले वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स. ओके, so this is about IUPAC nomenclature. Now we will see nomenclature of substituted benzene. IUPAC nomenclature of substituted benzene. So next target is again IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature of substituted benzene. तो अब हम एक substituted benzene को देखते हैं. substituted benzene. Now benzene, as we all know, is having hexagonal structure with alternate bonding, alternate double bond. तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता है, C6H6. तो ये बेंजीन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. करेक्ट है. अब ये रिप्रेजेंटेशन में हम क्या देखते हैं कि ये पोजीशन 6 कार्बन. करेक्ट, 6 कार्बन. तो ये कार्बन है सब यहाँ पर, एंड 6 हाइड्रोजन. 6 हाइड्रोजन and with alternate double bond. So this is what the benzene we see in this form, C6H6. Now IUPAC nomenclature of substituted benzene. तो सबसे पहले देखते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. Benzene which have only one substituent. तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, पहले एग्जाम्पल लिखता हूं फिर नोमेनक्लेचर पढ़ाना आसान हो जाएगा, है ना.
तो यहाँ हम बनाते हैं ये कुछ बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड। ओके, तो ये हेक्सागोनल रिंग हो गया। इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिए तो ये बेंजीन स्ट्रक्चर हो गया। नाउ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो जैसे यहां पर ये Cl आ गया, यहां पर Br आ गया, यहां समवेयर वी प्लेस आयोडीन, और यहां पर ये NO2 आ गया। दे आर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इनका IUPAC नोमेनक्लेचर लेना है अपने को, तो क्या करेंगे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है दैट बिकम्स अ प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ बेंजीन, टू द नेम ऑफ skeleton, that is benzene. So prefix is placed as substituent. Substituent is placed as prefix, prefix to the benzene ring, prefix to the benzene ring. तो जैसे अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर हम करते हैं, तो ये Cl है, क्लोरो, तो क्लोरो विल बी प्रीफिक्स टू व्हाट, बेंजीन। तो क्या नोमेनक्लेचर बना, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर प्रीफिक्स क्या दिखेगा, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रोमो, तो ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन। यहाँ प्रीफिक्स क्या दिख रहा है, आइडो, आइडोबेंजीन। और यहाँ प्रीफिक्स क्या है, नाइट्रो, तो ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन। सो लाइक दिस वी कैन नेम द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स टू द नेम बेंजीन, टू द बेंजीन रिंग इटसेल्फ, दिस सब्स्टिट्यूएंट विल बिकम प्रीफिक्सेस। आ गया, सब्स्टिट्यूएंट इज प्लेस्ड एज प्रीफिक्स टू द बेंजीन रिंग इटसेल्फ। आ गया ध्यान में, तो ये एक पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब कुछ दूसरा पॉइंट देखते हैं। some mono substituted benzene are named as a common name or what we call trivial name, है ना। This trivial named benzene or common name benzene are universally accepted and also used by IUPAC system. Some mono substituted benzene, इसका कॉमन नेम है ना। क्या सिंपल तरीके से याद रखना है कि ये बेंजीन हो गया, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन घूमते रहती है ना, इसलिए कहीं पर भी आप लगा सकते हो ऑल्टरनेट। अब जैसे यहाँ पर ये OH आ गया, सो दिस कंपाउंड विल बी नेम्ड एज फिनॉल। ये कॉमन नेम है, लेकिन ऊपर वाले रूल के हिसाब से क्या लिखेंगे इसको, हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहां पर ये CH3, दिस इज नेम्ड एज टॉलिन। लेकिन रूल नंबर 1 के हिसाब से क्या बोलेंगे हम, मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट यहां पर ये NH2 लगा दीजिए आप,
तो ये हो गया एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन। वैसे इसका नोमेनक्लेचर क्या लिखेंगे? अमाइनो बेंजीन प्रीफिक्स है, अमाइनो बेंजीन एनिलीन। यहीं पर OCH3 लगा दिया तो ये बनेगा एनीसॉल। इसी कंपाउंड को हम बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन कॉमन नेम इसका। बट these names, phenol, toluene, aniline, anisole, these are the nomenclature very well accepted universally and by IUPAC system also. So during nomenclature of benzene, we can use this trivial name or common name of some compounds. They are considered as the name which are accepted universally. जैसे एक और कंपाउंड है जो हम आगे यूज करेंगे, वो कंपाउंड देखिए अब यहाँ पर आप, ये COOH, ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गया है ना। यहाँ फिर से एक और कंपाउंड बनाते हैं, वी विल सी दिस कंपाउंड, ऑल्टरनेट बॉन्ड आ गया और यहाँ पर ये CH1। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अल्डिहाइड ग्रुप विद बेंजीन वी कॉल इट एज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। So this is universally accepted name. This is acidic group, we call it as benzoic acid. तो ये सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के ट्रिवियल नेम है, कॉमन नेम है, जो यूनिवर्सली यूज्ड होते हैं और IUPAC सिस्टम ने भी एक्सेप्ट किया है। तो ये अपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गए। अब हम आते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड पे। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड क्या होते हैं वो देखते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, IUPAC nomenclature for disubstituted benzene. Disubstituted benzene, तो इसमें कॉमन नेम के हिसाब से, कॉमन नेम सिस्टम में we use prefix ऑर्थो के लिए O, ऑर्थो मेटा के लिए M and para के लिए P. We use these prefixes for disubstituted benzene in common name system. In IUPAC system for disubstituted benzene, यहाँ पर we use numbers to identify the substituent on benzene ring. We use numbers on benzene ring. तो prefixes ऑर्थो, मेटा एंड पैरा ये क्या होते हैं उसको पहले देखते हैं, है ना। तो एक बेंजीन रिंग बनाते हैं और उस पे पहले तो ये ऑर्थो, मेटा एंड पैरा को समझेंगे। ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गया। इसमें अब आप देखेंगे this position and this position, this is what we call as para position, this is what we call as ortho O, and this is known as meta M. अगर आप नंबरिंग करेंगे इस बेंजीन रिंग को नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो पैरा पे कौन सी पोजीशन आने वाली है 1 and 4। ऑर्थो पे कौन सी पोजीशन आने वाली है 2 and 6। और मेटा पे कौन सी पोजीशन आने वाली है 3 and 5। अब आप नंबरिंग क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज, वही पोजीशन मिलेगी आपको। ऐसा होगा क्या देखते हैं जरा।
अभी हमने क्या किया कि क्लॉकवाइज नंबरिंग किया, अब एंटी क्लॉकवाइज, ये तो फर्स्ट रहेगा, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन। देखिए फिर से 1 4 पैरा आ रहा है, 2 6 ऑर्थो आ रहा है, 3 5 है ना, ये 3 5 क्या आ रहा है, मेटा पोजीशन आ रही है। तो ये नंबरिंग यूज करेंगे IUPAC में, और ऑर्थो मेटा एंड पैरा यूज करेंगे ये कॉमन नेम सिस्टम है। सही है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में ये डाई सब्स्टिट्यूटेड के एग्जाम्पल और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फाइनली हम हमारा नोमेनक्लेचर पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, सो इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आप लोग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।